Assalamu alaikum Zabest. Welcome to Zab FM Digital. I am your host Fatima and I welcome you to BioTalk, where we delve deeper into the world of science and enlighten you about the new inventions in the field. We have quite an amazing podcast here for you today, where we'll be talking about the power of enzymes, and we have some very special guests here for you today. So, in the studio, I have Miss Mahanur, Ms. Ummehani and Ms. Iman, who will be discussing a lot about enzymes and to give us a better understanding of enzymology. So, Assalamu alaikum guys, how are you? Walaikum assalam. I'm good. How is your day been so far? It was good, alhamdulillah. Great. So, could you please introduce yourself to the audience and tell us what semester you are here in and what program are you in here at Zabest? Okay, so this is me, Mahanur Faisal, and I'm currently pursuing a degree in Bachelor's of Biotechnology, and I'm in 5th semester. Assalamu alaikum, I am Ummehani. I am doing my Bachelor's of Biotechnology from Zabist, currently studying in the 5th semester. This is me, Man Nasir, currently enrolled at Zabist in my 5th semester doing BS in Biotechnology. Perfect. तो क्या आप लोगों को शुरू से ही, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, तो शुरू से ही बायोटेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट था या डॉक्टर बनना था? बट लाइक ब्राउन पेरेंट्स जो होते हैं सबके बेटी डॉक्टर बनेगी, नाम के आगे डॉक्टर होना जरूरी है, बिकॉज किसी को अवेयरनेस नहीं है कि इतनी इमर्जिंग फील्ड्स आ गई हैं कि अब डॉक्टर और डेंटल वगैरह ये सब पीछे रह गए. इवन मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई थी कि अब MBBS में भी रिसर्च मैंडेटरी कर दिए. मतलब उनको नॉलेज नहीं है, वो हमसे पूछ रहे होते थे. एक जगह मैंने इंटर्नशिप की थी, वो हमसे पूछ रहे होते थे ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूज. अच्छा. तो आई वाज लाइक वाओ कि मेरी बहुत अच्छी फील्ड है. एंड मुझे ऐसा नहीं था कि हमेशा से मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग न्यू. So you came into research, of course, which is something new. So either of you, your parents weren't like कि नहीं मेरी बेटी डॉक्टर ही बनेगी? Not really. For me, there was no burden, no pressure from the parents, alhamdulillah. But I always had an insight for research, or I used to always think out of the box when you talk about science or biology. So I always wanted to be a part of a field which is extremely innovative related to biology. So all the ideas just amalgamated, and somehow I got admitted into biotechnology, and so far I must say that this is something of my interest. Like, I did not want to be a surgeon or do something on live human beings or something like that. I always had an insight to learn more about the processes which actually place in our bodies. I think I relate to that extremely, because I've also been very eager for knowledge my entire life. So even I gave my MD-CATs, of course, but it didn't happen for some reason. But I am extremely happy that I came into research instead of just stitching up people, of course. So Iman, if you have something to share about this. शुरू से I was into lab work, हैंड्स ऑन काम में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से. एंड फॉर दैट रीज़न आई वेंट टू गेट्स फार्मा इंटर्नशिप के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब में. एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. और मुझे बस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूँ लैब कोट पहन के एंड ऑल दैट. तो उसमें मुझे आई एंजॉय डूइंग दैट. So you all are 5th semester students, right? Yes. Right. Pipeting at this point is like therapeutic for you. क्योंकि इतनी करनी पड़ती है. So obviously you are 5th semester students. तो आजकल lab work अच्छा खासा हो रहा होगा, सर पे चढ़ रहा है. तो how are you guys feeling mentally? Like, are you under pressure? How is the semester treating you? To me, I think it's very chill. Because the major labs which are in our courses वो हो चुकी हैं. अच्छा. अब हमारा जो है वो theoretical थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अगर अब मुझे लैब में कोई खड़ा कर दे तो मुझे पता होगा सबके क्या कैसे करना है. तो मैं कह सकती हूँ कि I'm experienced enough in the these 5 semesters
कि इजीली अपना काम कर सकती हो. Perfect. Yeah, So do you have like favorite lab experiments? I want to do titration, or I work with the spectrophotometer. Like, do you have that preference? Titration is easy and Yeah. you know उसमें मजा भी आता है. Titration? When we use indicator, you know, और जो pink color आता है उसमें, we enjoy seeing that color. Science geeks. And I like to work with plant-based. Oh, really? Culture. That's very interesting. Okay, like our ma'am Neha, so she taught us a lot about plant tissue culture. कि कैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर करके हम पहले लैब में उसको अच्छा से प्रोटोकॉल दें, उसको ग्रो करवाएं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं कि हम एनवायरमेंटल कंडीशंस दे के उस प्लांट को हम कैसे ग्रोथ करवाने की कोशिश करें. ऑफ कोर्स फॉर फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो इस तरह से जैसे जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इसी तरह हम प्लांट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं for the use of future generations. Perfect. That's actually quite innovative, and I would love to hear more about it. But of course, the topic for today's podcast is enzymes. So, just to give an overview to the audience, Manur, could you elaborate a little to what enzymes are? Yeah, sure. First of all, thank you for having me here. I would love to share my knowledge with all of you. Enzymes are biological catalyst. By biological catalyst, I mean that they speed up the chemical reaction. Let's say अगर कोई reaction 1 घंटे में हो रहा है, so with the help of enzymes, it will get happen in half hour. So the next point is they are highly specific. Like not every enzyme can bind to every substrate and vice versa. And they play very crucial role. Like they are not like big. They are very they are tiny, but they do such big things. Like without enzymes, our body will be like a messy room, which is hard to clean up. So like that's how they play crucial role. Perfect. That was a very interesting way to explain what enzymes are. So, would you like to add something to what Mahanur said, Iman? Yes, I would like to add on. So basically, अगर हम इसको एक बिल्कुल simple words में लेके चलें तो enzymes are simple proteins that help in different body functions such as digestion or you know. So we've talked about what enzymes are. So what are the different types of enzymes, Manu? If you could elaborate a little on that. Yeah, sure. There are various types of enzymes like isomerase, ligase. Ligase is also known as biological glue because ये help करता है हमारे 2 molecules को join करने में. Like DNA strands हो गए. तो उन 2 DNA स्ट्रैंड्स को लाइगेस हेल्प करता है ज्वाइन करने में. और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पॉलीमरेज है, क्योंकि पॉलीमरेज हमारा जो हमारा सेंट्रल डॉगमा है, लाइक डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन. सो इसमें पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करने में. जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ATGC, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कोडोन बनता है और फिर कोडोन से हमारा प्रोटीन ट्रांसक्राइब होता है. तो एक तो ये हो गई. और एक हमारी टाइप है इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइज. तो हाइड्रोलाइज बेसिकली लिसिस हो रही है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Perfect. So biological glue is definitely going under the same list as tiny scissors. It is also always very nice to explain a certain very difficult concept in such a funny way, because उस तरह लोगों को याद भी रहता है. I'm sure audience को याद भी रहेगा. So Manu, when you were talking about enzymes are a very crucial component of digestion inside the human body. So how do they perform the digestion? Okay, so like for example, as we know कि हमारे सलाइवा में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज. so जब हम कोई फूड इनटेक कर रहे हैं तो अब फूड हम मतलब
इतना हम च्यू भी नहीं करते, इतना तो हम करते ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, लाइक हम जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो अमाइलेज क्या कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब लाइक स्टार्च कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू सिंपलर शुगर। लिपिड लाइपेज इज फॉर लिपिड्स, लिपिड को डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, और प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा होता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। सो जब हमारे बॉडी में हमारा फूड जाता है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, तो वो एक्सट्रैक्ट करने में बॉडी के लिए हेल्प हो जाती है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और फिर हमें एनर्जी मिल सके, वरना तो फिर इट्स हार्ड फॉर अस टू गेट एनर्जी। परफेक्ट, क्योंकि एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू सेड कि च्यू नहीं करते लोग, आराम से बैठ के खाना नहीं खाते। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इवन विद किड्स नाउअडेज। आई थिंक अम्मीज वुड रिलेट टू इट। तो आराम से बैठ के, हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है आराम से बैठ के खाना खाया करें। ऑफ कोर्स, सो मूविंग ऑन टू उम्मे हानी, so could you elaborate a little on the fact that if there is a link between enzymes and certain diseases like diabetes or arthritis? Yes, definitely. Thank you, Fatma. Of course, there is a very major link between the diseases in your body and enzymes. Now, enzymes basically आपके हर metabolic process में उनका part है। Metabolism जो आपकी body में हो रहा है, enzymes के बगैर वो complete नहीं हो सकता। कोई भी, अगर आप एक छोटा प्रोसेस भी ले लें, जैसे अगर आप DNA की कन्वर्जन की ही भी बात कर लें, तो उसमें भी पॉलीमरेज एंजाइम अगर नहीं होगा तो वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से इतने सारे आपके प्रोसेसेस होते हैं, तो हर पार्ट में एंजाइम ज़रूरी है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो सकेगा। तो जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, आर्थराइटिस की या कैंसर की, तो इन डिजीज़ में भी स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी की वजह से ही ये डिजीज़ कॉज हो रही होती हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो उसमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज़ कॉज हो जाती है। सेम फॉर कैंसर, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, उनके अंदर भी एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आ जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से आपके एंजाइम्स जो है वो ओवरली एक्सप्रेस होकर अपना काम ओवरडू कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। सेम गोज फॉर अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है आपके जॉइंट्स में, and it's all because of the activity of enzymes. तो काफ़ी complications भी प्रोड्यूस कर देते हैं अगर आपके पास enzymes की अमाउंट जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो if we're talking about that, does the deficiency of enzyme also cause certain pathological conditions? Yes, definitely. अगर कोई भी एक एंजाइम है कि किसी भी, अगर चलिए नेक्स्ट में पॉलीमरेज की बात कर देते हैं, अगर उसकी आपकी बॉडी में डिफिशियंसी आ गई है तो डीएनए कैसे कन्वर्ट होगा प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन नहीं बनेगी बॉडी में, आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी। एंजाइम्स जो है वो बनते ही प्रोटीन से हैं, और अगर प्रोटीन ही नहीं आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी तो आपके बाकी के प्रोसेसेस ऑब्वियसली हार्म होंगे। तो एंजाइम का डिसफंक्शन बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ या डिफॉर्मिटीज़ आपकी बॉडी में कॉज कर सकता है। तो कोई भी एंजाइम अगर ओवरली एक्सप्रेस हो रहा है या उसका अंडर एक्सप्रेशन भी है, तो उसकी वजह से भी आपकी बहुत सी सर्टेन डिजीजेज होती हैं जिनमें कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई पाथवे टारगेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्ट नहीं कर पाती, एक्ट नहीं कर पाती, तो आप डिजीज कंडीशन में चले जाते हो। ठीक है। और इस तरह का कोई है चीज़ें कि जिस तरह जिनको इस्तेमाल करके बाय यूजिंग देम वी कैन इंक्रीज द एंजाइम्स फंक्शन? बिल्कुल ऐसा है। हमें ये पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। यू नो दैट दे आर इंटायरली मेड ऑफ प्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर। सो प्रोटीन की जो मैक्सिमम कंजम्पशन हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो हमारी डाइट से मिल रही है। हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो अल्टीमेटली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और उसी प्रोटीन से हमारी बॉडी के डिफरेंट एंजाइम बन रहे होते हैं। सो हम इस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेक आवर enzymatic activity better in our body by having balanced diet. Balanced diet, proper nutrition, not over nutrition, not under nutrition. Everything should be balanced and maintained. जो nutrients आपको natural fruit से मिल रहे होते हैं, सीरियल से मिल रहे होते हैं, राइस, लेंटिल्स,
जितने भी आपके नेचुरल एडिटिव्स हैं आपको नेचुरली वो चीज़ कंज्यूम करना चाहिए. उससे क्या होता है कि आपकी जो एंजाइम्स की ओवरऑल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है. और एंजाइम की हेल्थ मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं जो एंजाइम से रिलेटेड है वो स्मूथली वर्क कर सके और उसमें कोई डिसफंक्शन या कोई डिफॉर्मिटी ना आ जाए. तो उस तरीके से विद अ गुड डाइट, विद अ हेल्दी डाइट, यू कैन एक्चुअली मेंटेन योर enzymatic activity in your So body. definitely, what we need is a healthy diet and a balanced diet. Yes. So that is something students should also very much put forth and try to make sure they are having a balanced diet. Do you guys have balanced diets? या टेस्ट की वजह से, एग्जाम्स की वजह से प्लेट साइड पे होती है और बस किताबें होती हैं सामने? नहीं, I always try to eat healthy and I always I don't compromise anything on my food because I know Perfect. food is very important. And because being a biotechnologist, I can actually understand कि एक फूड के आइटम का एक पार्ट का एक कंपोनेंट भी कितना आपकी जरूरी बॉडी है। में कितना जरूरी होता है ये आपको नहीं पता होता. तो अगर लेकिन आपको पता है। मुझे पता है. तो इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं ऑब्वियसली कार्ब्स की बात अगर की जाए तो कार्ब्स होते हैं नुकसानदेह, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप खाओ ही नहीं. सही, यू शुड हैव सम अमाउंट क्योंकि आपकी बॉडी में वो बन रहा है. आप नहीं खाओगे वो बनेगा. तो अगर आप नेचुरल सोर्सेज की ले लोगे किसी फ्रूट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, सो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल. सो हर कंपोनेंट, हर फूड के कंपोनेंट के पार्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको कंज्यूम करना है. बैलेंस्ड, हमेशा हर चीज बैलेंस में अच्छी रहती है, of course. So thank you so much, Hani. Moving on to you, Iman, as Hani was talking about how having a very balanced diet is what keeps the enzyme activity healthy inside your body. So there are also a lot of supplements that are available in the market. Are they safe for the consumption of people? Yes, enzyme supplements can definitely help support enzyme function, but it's definitely essential to consume high quality supplements from good manufacturers. और आप कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें because the way we take Panadol daily life में, which is of course not good. हमने बिल्कुल उसको एक टॉफी, एक कैंडी कंसिडर कर दी है और हम वो कंज्यूम करते रहते हैं. एवरी 2 hours 3 hours बाद हमें कोई भी पेन होता है हम वो खाते हैं. तो इसको ऐसे नहीं लेते, इसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से लेना होता है दीज एंजाइम सप्लीमेंट्स. इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. एंजाइम सप्लीमेंट्स पे आने से पहले इफ यू वांट टू नेचुरली आप अपनी वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी पूरी करना चाहते हो तो उसके 2 मेन सोर्सेज है विच आर पाइनएप्पल ऑफ कोर्स एंड पपाया. और इन दोनों से आपको बहुत अच्छे अमाउंट्स में इनके जो एंजाइम्स होते हैं, पपाया से हमें पेपेन मिल सकता है विच डेफिनेटली हेल्प्स इन गुड डाइजेशन और इससे हमारी गट भी हेल्दी रहती है. gut is stomach again and non-scientific. Exactly. अगर कोई पर्सन है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अब लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है, जो कि मिल्क बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं कर पाता, वो अगर मिल्क कंज्यूम करेगा वो पर्सन तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसके गट में. तो उसके लिए फिर क्या है कि सोल्यूशन क्या है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट मिल्क मिलता है मार्केट्स में तो वो कंज्यूम करें. एंड देन ऑफ कोर्स दीज एंजाइम सप्लीमेंट्स जो कि आपको लैक्टेज प्रोवाइड कर रहा है. अब लैक्टेज क्या है? लैक्टेज आपका जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको बहुत हद तक बेटर करता है. So Iman, what can you tell us that what does the future hold for enzymes in the research field and how it could impact the humans and how it could impact the human health? Enzymes have a very bright future. मतलब अगर हम enzymes पे बात करें तो this would be a never ending discussion क्योंकि enzymes आपको लगेगा कि अच्छा okay this is not a important thing, एक normal सी चीज़ है. No, एंजाइम्स नहीं होंगे तो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली. हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में देयर इज एन एंजाइम जो कि अपना काम कर रहा है विच वर्क्स प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा एक दिन वो
काम कर रहा है फिर दूसरे दिन उसको रेस्ट चाहिए, नो ऐसा नहीं है, वो पूरे टाइम काम करते रहते हैं एंजाइम्स। तो अब अगर हम बात करें फ्यूचर की, एंजाइम्स के फ्यूचर की, तो उसमें हमारी वर्ल्ड में करंटली जो रिसेंट हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं, दैट आर डायबिटीज एंड कैंसर। इन दोनों की ट्रीटमेंट में एंजाइम्स बहुत हमें हेल्प कर सकती हैं और we can make different drugs out of these enzymes which can help overcome cancers and diabetes. ऑब्वियसली कैंसर के लिए तो हमें बहुत रिसर्चेज आगे करनी चाहिए और उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आप मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि everybody had such informative answers, of course, for the scientific listeners and the non-scientific listeners. You made it very easy for everyone to understand. At least they will get an insight To what? Exactly. enzymes, that how they are playing important role in our body. Exactly, and how it could become a very focal point in research. I thank you all for coming here today, definitely. Is there anything you would like to add? Yes, of course. I would like to thank Ms. Rusa for giving me this opportunity about sharing my insights on enzymes in this podcast. So it was, I had an amazing time. It was an amazing opportunity. So thank you so much for having me. I would also like to thank Dr. Ulsa that she gave me this opportunity. I never did this, but it was a wonderful experience to share my knowledge with all of you. So thank you so much for having me here. A big thank you to Ms. Rusa for arranging this amazing podcast. और वो कहते हैं ना, हर चीज का एक पहली बार होता है और वो आज हो गया पॉडकास्ट का भी। एंड एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइक, कमेंट एंड शेयर, और देखिए आप इन्फ्लुएंस पे हमारी ये पॉडकास्ट एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much once again, and thank you so much for the viewers for joining in today into this discussion about the world of enzymes. If there's anything you would like to say, any feedback, you can give it to us at feedback@zabfm.org. And if you don't have the time for that, please leave a comment down in the comment box. Once again, a special thanks to Mr. Rusa for arranging this activity for us. Stay tuned for the next episode. This is your host Fatima signing off from Zab FM.